Good morning, everyone. मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। आप चाय लेके आ गई बहन? चाय नहीं है, ग्रीन टी है। इधर वे चाय तो मैंने वही पी तो ली थी। अब तो खैर 10 बज रहे हैं, चाय के लिए बहुत देर हो गई है। चाय का कोई वक्त नहीं होता सबाहत, पता नहीं ये किस या दुनिया में रहती हो तुम। ये कुछ ये इज दिस लाइक अ सबाहत प्रॉब्लम और इज दिस लाइक अ हैदराबादी प्रॉब्लम? This is Sabahat problem. This is Sabahat, not. Uh, I'm I'm such a person of routine actually, which is very strange. क्योंकि I mean the way I grew up, हम लोग तो हर साल move करते थे, तो मुझे बहुत आदत है कि नई चीजें adapt करना and all of that. But मेरे फिर घर के अंदर जो रूटीन है ना वो फिक्स्ड होता है। अब्बू की एक्चुअली आदत ये होती थी, मेरे माय फादर यूज्ड टू हैव अ रूटीन। इट वाज सच अ स्ट्रिक्ट रूटीन कि 7 बजे उनके रात को खाना होना ज़रूरी है। उनके सुबह वही 7 बजे नाश्ता होना ज़रूरी है। मेरा भी 7 साढ़े 7 बजे तक इतनी भूख लगती है कि मैं उठ जाती हूँ। नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल वेक अप बिकॉज़ इट्स 7 o'clock आई विल बी हंग्री, क्योंकि मुझे नाश्ता करना होता है। और रोज़ों का अभी तो रमज़ान आने वाला है ना, रोज़ों में भी मुझे पता टाइम इसलिए पता चलता है क्योंकि 1 बजे मुझे लंच की भूख होती है। 7 बजे सुबह even after सहरी at 7 o'clock in the morning I'll wake up because मुझे भूख लग रही होती है। So you're a लेकिन creature of routine and habit. Yes, I got it from my we father. should also, it's also brilliant and awe-inspiring how our body tells us who we are as we age, Yeah. क्योंकि I see that so much of me is becoming my father and my mother, like the kind of thing we used to see Yeah. them doing. As I'm aging, I'm also becoming that. See, like Same here. Daniel and I were eating out and we had this really hearty anda paratha sort of a thing. And once we finished that meal, I said, यार दिल चाह रहा है walk करके घर जाऊं. And Daniel said, यार दिल चाह रहा है लस्सी पीऊं. And we just looked at each other and we laughed because that's exactly the kind of comments our respective fathers would make. And we was like, oh God, we are becoming our parents. We do आपका though. जो है We ना, totally become our parents. yeah, yes, in छोटी छोटी चीजों में ना, like we were buying halwa puri yesterday and Daniel said to me, यार I am becoming that दिल्ली वाला अंकल कि मुझे हलवे से ज्यादा उसकी जो वो आलू की सालन है उस पे मेरा दिल आ रहा है, बिकॉज एज अ दिल्ली वाला पर्सन आई हैव सीन कि मेरे घर हमारे घरों में कोई भी हलवा नहीं खाता. Everybody is like halwa kachori or bhaji is like savory is the main thing. Nobody wants to have the sweet part. And Daniel said, I am becoming that. And I And am it's such a Bengali that way because मेरे लिए तो yeah, halwa is why I would get into chana puri at all. I love my meetha. I yeah. love it. See, so it's so much of our DNA gets triggered as we cross our 30s. And 35 is I'm becoming my father and my mother in different tiny ways. Yes, I agree with you. I Yeah. mean, I was reflecting on my road rage and I realized that a lot of it is actually my father because he Hmm. has anxiety on the road. So I've managed to, so I used to be a very angry person. That I've managed to, control and go back and check and make sure that that's okay. One space where I have not been able to control it completely. I mean, it's way, way under control now, but is where my anxiety levels go high when I'm driving. And that's my father. That's my father. Yeah. Also, my father is extremely meticulous in organizing everything, which is both my sisters, and my mother is a let go. I am her that way. You're not. You're not. I'm Oh, sorry. you are तुम्हारी not. खुशफहमी है ये कि तुम Yeah. लेट गो कर सकती हो, कुछ भी लेट गो नहीं कर सकती हो। ये एक इंतहाई गलत प्रोपागेंडा है कि आप मेटिकुलस नहीं है, बिकॉज यू आर वन ऑफ द मोस्ट टू द like Persnickety. The word in English is persnickety. Like, yeah, oh, you must have things a certain way. You and your मुझे याद है हम लोग जब हांगकांग जाते थे and you would come out with these jodas that were completely ironed and set yeah, for each day
for, And this the- lady does all the ironing on the first day of travel. on the first day. Oh Yeah, my God. that's important. Me. I Yeah. need to organize And my then headspace. she has the audacity that she is like carefree. No, you're not. No, you have to look. No, You no. have to look at my living space. So if you look at my bed, you look at my room, it's a mess. That's But different. it's a mess. That's different. Mhm. You are still meticulous in persnickety And the way your also, father is. I'm sorry, but her definition of mess is also something debatable Exactly. because I refuse. I I don't have think seen my her sisters work should look at tables this. and all of that. Sorry, we're No, not buying it. I'm not buying it. living I space is live. horrible. I hope my sisters do not see this podcast. They will come in and they'll be the first ones trolling us on this podcast if they hear Let you them guys saying troll. that I'm My meticulous. sister is a mess. My sister is मेरी बहन और मेरा भाई माशाल्लाह से ऐसा लगता था जैसे कबाड़ से निकले हैं और उसी में रहते हैं. And I don't understand how I'm related to them. Not at all. मैं तो देखो माहीन नबीला, मैं सच बोल रही हूँ यहाँ पे और ये दोनों मान नहीं गए हैं. मुझे ट्रोल मत करना, इन दोनों को करना, ठीक है? Okay. But you don't realize. See, No, you don't. everybody has a different definition of an adjective. जैसे मुझे हमेशा ना जब when I was in engineering college मुझे इतना गुस्सा आता था कि ये जो पोजीशन होल्डर टाइप लोग होते हैं ना, यार कुछ नहीं पढ़ा, यार कुछ नहीं आता, and they would go and ace their exams. But it was later that I realized that they are not lying. उनका जो लेवल है ना वो अपने लिए इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं उनके एक्सीलेंस के कि वो उनको वाकई ऐसा लगता है कि वो कुछ पढ़ के नहीं आए, लेकिन वो हम जैसे मीडियोकर लोगों के लिए तो वो दे आर क्वाइट अप देयर, बट फॉर देम इट्स नॉट इनफ, सो दे आर नॉट लाइंग. पुअर देम. बट Mediocre. I mean, let's mediocrity का not. कोई जगह सा यहाँ पे. I mean, Yeah, please, Sabahat, sorry. can someone Sorry. कोई मतलब कुरत शर्म भी नहीं आ रही है. तुम्हारे भी खुशफहमी में मुब्तला हो तुम अपने इसमें कि mediocre. If you were mediocre, you certainly wouldn't have been the star performer at OUP for I don't know how many times. How many awards did you get? I Seriously. mean, forget that. ये इस वीडियो के ऊपर जो हम पॉडकास्ट करते हैं, अच्छा तो आगे दिमाग में आगे दर्द हो जाती है ये आगे औरत. है ना, आगे चलते, दिमाग आगे में चलते. दर्द करती है कि नहीं ये सही मत्थे नहीं जो है, इसको वापस सूर, जाओ, मत्थे जो इसको ठीक सूर, आई एम करो. टेलिंग यू. व्हाट डज दैट मीन? मत्थे सर का जो दर्द? सूर. हाँ, सूर इज दर्द इन सिंधी. ओके, सिंधी में. आई थॉट द इंग्लिश सूर. Oh no. Yeah, let's get to the topic, shall we? We were going to talk about family dynamics, no? Yeah. Yeah. So this yes, is a nice segue into it, actually. and I would also like to, discuss who our grandparents were and how we have changed over time. Let's start by talking about our grandmoms. I really feel that दो generation पहले मेरी नानी, मेरी दादी, मेरे हस्बैंड की नानी दादी, जितनी नानियां दादियां मैंने देखी हैं, एक जनरेशन गुजरी औरतों की जिनको सलीके के नाम पे ऑब्सेसिव डिसऑर्डर्स दिए गए कि Yes, राहिला जो जैसे. चांदनी बिछेगी उस पे कोई बल नहीं आएगा, और उस चांदनी के बल ना आने का एक ही तरीका है कि उसको इस्तेमाल ना किया जाए, तो वो उसको इस्तेमाल नहीं करने देती थी. कोई पलंग पे नहीं बैठेगा, पलंग इज लाइक कोई किसी बच्चे को इजाजत नहीं है. एंड if I'll be honest with you, this obsession with this insane level of cleanliness and salika affected their relationships with their children and their grandchildren, because मेरी मेमोरी भी यही है, मेरे हस्बैंड की मेमोरी भी यही है कि दादी पलंग पे नहीं बैठने देती थी, नानियां चलने नहीं देती थी. कोई चीज इस्तेमाल ना हो जाए, क्योंकि वो इस्तेमाल हो जाएगी तो वो खराब हो जाएगी, और ये कोई ऑप्शन नहीं है कि वो खराब हो जाएगी. हाँ. So मतलब अब मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के घर में ये कितना है, मगर मेरे यहाँ पे खैर अल्लाह का शुक्र है, अब मेरी बहन ने आकर के बहुत कुछ इन्होंने इसमें क्लियर किया. लेकिन क्रॉकरी का एक पूरा तोबा, एक अंबार है जो कि सिर्फ मेहमानों के लिए रखा गया. वो मेहमान जो कि पता नहीं कहाँ से आएंगे और हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम भी तो मेहमान है ना. आई यूज्ड टू टेल आवर मदर, मामा देखो ये बेटियां भी मेहमान है, हाँ इनके ससुराल वाले आएंगे ना तो हम निकालेंगे,
अजीब पागलपना था ये। वो तो And Yeah. yeah, I mean, you have lots and lots of. My mother also collected all kinds of crockery, which only came out for guests. वरना अंदर रखा हुआ होता था, कभी इस्तेमाल नहीं होता था, नया होता था तो इस्तेमाल नहीं होता था. I mean, I और think that's एक 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 उर्दू में एक लफ्ज होता है बरत लेना, चीज को इस्तेमाल कर लेना हाँ और उस चीज से फैज हासिल कर लेना जिंदगी में। हाँ मगर बरतने का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि एक होर्डिंग मेंटेलिटी, शायद वो जब पार्टीशन से आए थे तो उनके पास चीजें नहीं थी, तो वो दे वर जस्ट सो स्केयर्ड ऑफ लूजिंग देम के ना ये भी रख दो, ये चीजें आ रही हैं इसको सब चीज रख दो। मतलब आई हैव विटनेस दिस के कोई खाने की चीज भी आती थी ना जिसकी एक शेल्फ लाइफ है तो वो भी रख दी जाएगी, और मैंने अपनी आंखों के सामने उनको कीड़ों को खाते हुए देखा है। वो कीड़े खाएंगे बाद में, उसमें से निकलेगी तो वो एक्सपायर हो गई है, वो एक्सपायरी की भी इस हद तक पहुंच गई है कि अब उसमें किसी किस्म का छोटा सा कीड़ा आ गया है, पर वो हाँ। खाएंगे नहीं, बिकॉज हमने खा ली तो खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई तो वो ज़हनी सुकून खत्म हो जाएगा कि अभी तो वो रखी हुई है तो यू नो लाइक ऑल इज वेल, अभी वो अंदर खाना इतना सारा रखा हुआ है, कोई आ गया तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और वो जो बस मेहमानों के लिए खाना होता है ना, जिसके बाद होता है ये कि जब मेहमान आके चला जाता है तो फिर सब जो वो बचे हुए खाने के ऊपर टूटती है ना पूरी दुनिया, कि यस ओ नॉर्मल दिनों में तो ये खाना मिलेगा नहीं, अभी खा लेते हैं। ये यस सिचुएशन भी बहुत बहुत रेलेवेंट रही है हमारे यहाँ। आई रिमेम्बर। अच्छा, तो हम बात, पता नहीं शेल्फ लाइफ और खानों की हम बात कर क्यों गए हैं, क्योंकि हमारे साथ एक खातून बैठी हुई है जो बिलीव ही नहीं करती शेल्फ लाइफ जैसे किसी नंबर पे, उनके हिसाब से ऐसा होता नहीं है। नहीं, मतलब दिस इज सलीके के ऊपर एक चीज ये खानदानी चीज है. मेरी बहन भी नहीं मानती है. हम लोग एक्सपायरी डेट्स को समझते हैं कि सजेशंस हैं बेसिकली, और मैं तो खाती रहती हूँ जब तक उसमें कोई ग्रीन चीज या काली चीज नजर नहीं आए, तो फिर तो मैं खाऊंगी, क्योंकि रियली एक्सपायरी डेट्स वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, दे आर जस्ट आपको मैं बता दूं, सजेशंस. पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो है ना एक्सपायरी डेट्स आर वेरी नहीं नहीं, क्वेश्चनेबल थिंग, मेरी क्योंकि बहन तो बाहर रहती है ना. हाँ वहाँ की भी एक्सपायरी डेट्स. वैसे मेरी खाला डॉक्टर हैं, वो तो लंदन में डॉक्टर हैं, वो भी कहती हैं कि एक्सपायरी इज अ सजेस्टेड टाइमलाइन, एंड फॉर मेडिसिन शी सेज दैट अप टू 6 months यू कैन हैव इट आफ्टर द एक्सपायरी डेट, सो डोंट वरी अबाउट इट सो मच. ये सिर्फ इनकी राय है। हाँ, कब बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है। इस वजह जी से खबरदार कोई मेडिकल एसोसिएशन या फूड एसोसिएशन हमारे ऊपर कोई सही बात है, बदतमीजी सही है, करे। सही है, ये सही इन खातून का मसला है। और मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को इन खातून के बारे में, कि ये खाती होंगी बियॉन्ड एक्सपायरी के खाने, लेकिन जब इनके घर कोई जाता है तो ये दिल खोल कर अपना दस्तरखान बिल्कुल फ्रेश बनाती जी हैं और हमें देती हैं। जी तो और इनको हाँ, जितना लेकिन शौक है मेहमान नवाजी का, उससे उसका अंदाजा आप लोग लगा नहीं सकते। जी इससे मुझे वैसे याद आया कि माय मदर हु यूज्ड टू हेट, शी इज नॉट अ होम बॉडी, आई मीन इट्स अ नोन फैक्ट। तो मुझे याद है एक दफा मेरी नानी, शी वाज विजिटिंग अस, माय लेट नानी वाज विजिटिंग अस इन कराची, और मामा ने खाना बनाया। खाना बना करके व्हाट शी यूज्ड टू डू वाज, शी वाज लाइक, ये बार बार इतने बर्तन कौन धोएगा, तो वो हमेशा ना टेबल पे ला करके डेगची रखती थी और कहती थी बस इसी से खाना निकालो और खा लो, ठीक है। तो मुझे क्या पता, आई वाज आस्क्ड टू ले द टेबल, मैंने इसी तरह वहां पे मैट्स देगची ला लगाए के और मैं रख ली. लाके डेगची यस. लाने रखने वाली थी। इतने में मेरी नानी आई एंड शी वेंट थपाक, ये क्या उड़न चंडियों की तरह काम होगा इस घर के अंदर, तुम लोगों को कोई तरीका नहीं है, कोई सलीका नहीं है। एंड आई एम लुकिंग एट देम एंड आई एम थिंकिंग, मगर मैंने क्या किया है, मुझसे तो रोज इसी तरह काम करवाया जाता है। बिकॉज दैट या सलीका वाज सो इम्पोर्टेंट टू हर। या मतलब सलीका was the only validation a woman would need all her life। अरे वो बड़ी सलीकामंद है और या वो फुअर है, is like the धड़े। only two categories। या या और बेसिकली जी एक 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 उसके ना दरमियान में एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसका दूसरा साइड भी देखा है, हम सब ने अपने घरों में वैसी फैमिलीज पुअरपन भी माशाल्लाह देखी हैं। से मैंने भी बहुत जी देखा. वो अकबरी अजहरी की कहानी हम सब ने पढ़ी जी है। वो मैंने नहीं पढ़ी नेक्स्ट है, लेवल लेकिन होता था। मतलब वी इवन एज किड्स आई रिमेम्बर फीलिंग नॉशियस कि आपके सबके रिश्तेदारों के ऐसे घर होते थे। आई एम सॉरी दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग, यहाँ फ्रिज खुलता था तो देयर वाज दिस वियर्ड sort of stench that would come out, and I have these relatives जिनके घर मैं पानी, even as like a 6 or 7 years old I could not have consume water because water would taste weird in those houses. So you know there, yeah, so you know like there is this obsessive women who are cleaning all the time, or these
completely gone the other way, women who just don't care at all. So you needs to be, you know, this balance where you are clean and hygienic and reasonably mindful of all these things, but don't make this like the motive of your life. Salika But is how much? So I want to ask you psychologically, how much does it bother you, Khagat, the Salika bit? Because out of the three of us, you are one of the most Salikemand, and then Sabahat. I have no Salika. it bothers me. It does bother me when things see my I've had to later I see एक अगर कोई मुझसे बोले ना कि मुझे किस औरत से सबसे ज्यादा डर लगता है अपने आप को जज करवाते हुए, दैट्स माय मॉम. क्योंकि मुझे कभी यू नो आई एम नॉट इवन एज स्केयर्ड ऑफ माय मदर इन लॉ जजिंग माय सलीका एज आई एम ऑफ माय मॉम, बिकॉज लाइक फस्टीडियस परफेक्शनिज्म की हदों पे हैं सलीके को लेके. सो बट यू नो then later in my life Rahil taught me that good enough is the best, and I had to train myself to think कि यार अगर मुझे जिंदगी में कुछ और भी करना है ना तो I have to train myself good enough is the best. So Yeah. now I care कि चीजें हाइजीनिकली ऑन पॉइंट हो, गंदगी बिल्कुल टॉलरेट ना हो, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं कर रहे अगले हफ्ते कबर्ड सही कर लेंगे. इन चीजों में टेम्परामेंट होना चाहिए क्योंकि ये चीजें see the thing about housework is that it never ends. The laundry, the kitchen chores, it's a never ending cycle. It repeats every day, and I think it takes a lot of psychological toll. This needs to be talked about कि ये जो घर का काम औरतों पे है ना, not just it's mundane, but it psychologically affects you because this job is never done. इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि मेरी लॉन्ड्री बास्केट अभी मैंने क्लियर की है एंड विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स उसके अंदर कोई शर्ट आ जाएगी. और दिस इज एन ऑन गोइंग इनफाइनाइट प्रोसेस जो औरतें करती हैं सुबह से शाम तक. द कॉग्निटिव लोड ऑफ इट इज ह्यूज. और I मर्दों को want to लगता है tell you though, yeah, but I want to tell you something. You said something very interesting earlier on in this conversation that it does impact their relationship with their children. One thing. वेरी मच. Number two, that it, I'm thinking कि जब आपके बच्चे जो हैं वो they can't live their childhood क्योंकि ये चीज खराब नहीं हो सकती, यहाँ पे गिर नहीं सकते, they're not being themselves. अच्छा, अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि उन्हें डिसिप्लिन सिखाना जरूरी है कि किसी और के घर जाएंगे तो उनको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए. बट एट द सेम टाइम कुछ भी आप लिव ही नहीं कर सकते, दैट कुड बी समथिंग जो कि बहुत क्रिपलिंग हो सकता है एक बच्चे के साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए. और इसकी एक बहुत बड़ा वैलिडेशन यहाँ से आती है कि अब वो खुद इस चीज को समझते हैं क्योंकि हमारी जनरेशन ये एक्सपीरियंस कर रही है कि वो माँ बाप जो हमें बेड पर उछलने भी नहीं देते थे, बैठने नहीं देते थे, वो माँ बाप अब अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को बिस्तरों पर छोड़ रहे हैं, वो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, अरे सही हो जाएगा. सो एक जनरेशन के साथ उन्होंने ये करके देख लिया कि ये सही नहीं है, और जो अगले बच्चे उनके हाथ में आए तो वो उनको हर चीज की इजाजत दे रहे हैं. यू नो वी आई दूसरे फील टू एक्सट्रीम मेक पे. अ वो भी दूसरे एक्सट्रीम पे चले जा रहे हैं ना, वो भी हाँ. तो आप नहीं, फिर नॉट सब कुछ नेसेसरली करने लाइक दे रहे हैं. मैं अपनी बदतमीजी नहीं मगर शरारत की गुंजाइश दे रहे हैं. वो जो एक एक आर्मी लेवल डिसिप्लिन घरों के अंदर था ना कि यू कैन नॉट डू, यू कैन ओनली डू एज मच इन दिस पार्ट ऑफ द हाउस. सही है, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं भी अपने बच्चे के ऊपर इन्फोर्स करती हूँ, आई एग्री विद दैट. लेकिन वही जनरेशन अब बहुत डिफरेंट तरीके से नए बच्चों के साथ ऑपरेट कर रही है क्योंकि और इन बच्चों से उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमारे साथ नहीं थे क्योंकि वही बात है ना कि यू नीड टू बी अ लिटिल लूज. शायद वो औरतें जो हमारी माएँ थी उनके ऊपर इतना प्रेशर था सोसाइटी का टू बी अ सर्टेन वे, वही सलीका मन, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, बच्चों को ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, ऐसे स्कोर्स होने चाहिए. यू नो द चेकलिस्ट थी उनके हाथ में जो उनको रोज सुबह से लेकर आखिर तक करनी होती थी. तो शायद माय मम सेज कि मैंने अपने बच्चों को एंजॉय ही नहीं किया क्योंकि आई वाज सो बिजी बीइंग. I think that's a generational thing. There was that generation ना, हमारे parents या तुम्हारे parents. I don't know so much about your parents, but our parents, my father obviously never enjoyed time with his kids. He was constantly working, or he wasn't even living with us half the time. मुझे तो खैर I don't understand those kind of family dynamics anyway, क्योंकि हम लोग एक तो बाहर थे और अकेले थे, so we were a completely nuclear family. We didn't have relatives.
मेरे नानी का तो मेरी अम्मी की शादी से पहले इंतकाल हो गया था, सो आई नेवर न्यू हर। और मेरी दादी का भी, आई थिंक आई वाज 7 or 8 when she died, so I was 6 or 7 when she died. Never knew her then. So I had like no connection with that generation. But my parents' generation, I think the generation in general, what they would call the baby boomers, were very much about working, constantly working, Yeah. constantly Yes. building Yeah. their lives, Being productive, being productive. productive. And because of that, yes, they, we turned into what we were called latchkey kids. Because parents were working, we would come home alone from school and, uh, make our own food, do our own things most of the time. हमें तो छोड़ा हुआ था इन लोगों और ने. शबात, ये चीज हमने भी इनहेरिट नहीं करी. लाइक आई डू नॉट एवर रिमेम्बर एवर सीइंग माय मदर नॉट वर्किंग. The only time she would not, I would see her sitting down is when there would be a phone Phone call. और वो calls. जमाने में वो आपको बैठकर ही बात करनी है, you cannot walk and work. हाँ, तो ठीक है. Landline. वो मैंने सिर्फ उनको उस वक्त बैठे हुए देखा है. बट अदरवाइज मेरी पूरी कॉन्शियस लाइफ में शी वाज कॉन्स्टेंटली वर्किंग. शी वाज अ स्टे एट होम मम, बट शी वुड बी कॉन्स्टेंटली डूइंग द हाउस वर्क. Or I think I have also inherited this because I think at this age in my life, I was speaking to my husband about it, that the cognitive load I get from this guilt, कि every time I'm not doing anything productive, I feel guilt कि मैं वेस्ट कर रही हूँ. लाइक और चाहे वो मुझे फिर अगर मैं मुस्तकिल प्रोडक्टिव रह के मेरे अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है और मेरे अंदर फिजिकल स्ट्रेन पैदा हो जाता है, लेकिन वहां तक पहुंच जाती हूँ मैं, क्योंकि मैं 1 मिनट भी अगर बैठूंगी ना तो मैं बहुत गिल्ट फील करती हूँ कि मैं कुछ कर नहीं रही कि वो हूँ. गिल्ट, मैं बात बताऊं तुम्हें, क्योंकि ये गिल्ट एक पूरा सिस्टम फील करवाता था इन्हें. I mean, I remember sitting through conversations, and these were drawing room conversations or just chit chat conversations that sometimes older women would have over a cup of tea. क्योंकि शाम में तो फिर कभी ये लोग बैठ या जाते थे कि उनको उनकी आप उसको देखें, बहू को देखें, वो दोपहर में जाके सो जाती हैं. और यस अच्छा, अब सोने में क्या, अब अगर आप अपने घर पे हैं तो और आपको नींद आ गई है तो सो कोई भी जाए. वजह हो सकती है. हाँ. हाँ, मतलब कोई भी वजह हो सकती है, या वजह नहीं हो सकती है, या सिर्फ ये वजह हो सकती है कि नींद आ गई है, तो सो जाने दें. और वो एक बिल्कुल एक मिलिट्री रूल होता है कि भाई इतने बजे तक हमारे घर के खाने बन जाने चाहिए, ठीक है ना. यस अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि क्योंकि पूरी मशीनरी इसी तरह से ट्रेन की जाती है, तो उस घर का एक एक फर्द, चाहे वो मर्द हो या औरतें, उनकी परफेक्शन का एक्सपेक्टेशन लेवल बिल्कुल टू द लेटर बना हुआ होता है. अब होता क्या है कि जब ये बच्चे शादियां करके घर से बाहर कहीं और जाते हैं या घर पे किसी को लेके आते हैं, क्योंकि वो टू द लेटर उस तरह फॉलो नहीं करते, वो किसी और घर से टू द लेटर लेके आ गए हैं, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है लोगों के लिए. क्योंकि उसमें ये नहीं होता कि शेड्स ऑफ ग्रे हैं. इट्स आइदर ब्लैक और व्हाइट, इट्स आइदर करेक्ट और इट्स इनकरेक्ट. there's nothing in between, and that causes a lot of problems because one would think कि अच्छा सही है, आप इस तरह से आलू गोश्त बनाते होंगे, लेकिन मेरे घर में तो ये काम इस तरह से होता है. या फॉर एग्जांपल किसी के अगर किचन के जो काम का तरीका है वो इस तरह का है. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो बर्तन जमा करते हैं सारे खाना बनाने के दौरान और फिर उसके बाद वो एक साथ धोते हैं. मगर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, लाइक इफ आई हैव टू एवर कुक एनीथिंग, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं साथ साथ धोती जाऊं और होती जाए. समेटती जाऊं, क्योंकि हम्म. मुझे बहुत परेशानी होती Same है here. मेसी वर्क एरिया में. मुझे मुझे तंग होती हूँ. या मगर इसमें कुछ सही या गलत नहीं है ना. what I'm saying is that whatever system works for somebody, you should just let them do the work that way. Why do we turn into these tyrant micromanagers for anybody who's existing?